I don't know guys. I think probably the way people teach उस हिसाब से उनको लगता है ये books अच्छी हैं वो books अच्छी हैं. So that's it. So guys remember when you go to the bookshop, don't waste your time कि ये book भी ले लो ये book भी ले लो. सबसे पहले आप ये कीजिए. सबसे पहले I want you to do all of this. Like I've written. उसके बाद उसके बाद then you have to see कि coaching जाना है नहीं जाना. I mean if you can afford it, go ahead. If you can't, well you can still crack it. But even if you go to coaching, remember self study आपको करनी पड़ेगी. अगर आपको अच्छी रैंक लानी है, self study आपको करनी पड़ेगी. And before buying any books, first complete the basics of NCERT and NCERT exemplar, and then do as many previous year questions. जैसे आपने basics सीख लिए, 2-3 previous years के question papers आप कर लीजिए, उससे आपको पता चल जाएगा कि आपको कैसे knowledge apply करनी है, questions का क्या level है, and then you will also know कि आपका क्या level है. उस हिसाब से मेरे को कौन सी book लेनी चाहिए और आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन से questions practice करने हैं and which questions are a waste of time, you are not supposed to practice them. मतलब आपको काफी कुछ पता चल जाएगा. And one more thing that I want to tell you guys is that the best way to prepare for IIT is trying to find people who maybe live near your locality, or try and find people who have previously given this exam. So the people who have previously given this exam, and they failed, whether they went for coaching or not, who gave the IIT exam, if they failed, I'm sure there's one thing they're going to tell. They're going to say the biggest mistake we made was we never did self-study and we depended too much on our coaching teachers. And one more thing I want to tell you guys, मैं मतलब भूलने ही वाला था पर मैं आपको एक चीज बताना. Guys, many people think कि भाई स्कूल इम्पोर्टेंट नहीं है, स्कूल में झक मार लो, बस अटेंडेंस देने चले जाओ, बाकी सब कुछ कोचिंग में आप सीखो. नो गाइस. एंड गाइस डोंट थिंक ऑफ ड्रॉपिंग आउट ऑफ स्कूल. मैं आपको एक चीज बता देता हूँ गाइस, आपके स्कूल टीचर्स जो है ना वही आपके भगवान है इस IIT एग्जाम. I'll tell you why. Because guys they know you better than your coaching teachers. Okay, क्योंकि वो आपको काफी सालों से पढ़ा है, उनको आपका लेवल पता है, आपकी पोटेंशियल पता है, आपकी वीकनेस, आपकी गैप्स. तो गोइंग टू स्कूल इज अ मस्ट, है ना. जब आप स्कूल भी जाओगे, क्लासेस भी अटेंड करोगे, उसके बाद कोचिंग जाओगे, देन यू विल बी लाइक स्कूल टीचर्स भी अच्छे हैं, कोचिंग के टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं. बट इफ यू डोंट टेक स्कूल सीरियसली एंड देन यू गो फॉर कोचिंग, आपको कुछ समझ नहीं आएगा, देन यू विल से कि भाई कोचिंग के टीचर्स बेकार है. नहीं, ऐसा नहीं है गाइस. स्कूल जाते रहिए, दोज आर योर बेस्ट टीचर्स. क्योंकि जो बेसिक्स है ना, IIT की जो बेसिक्स है, आपके स्कूल टीचर से बेटर आपको कोई नहीं पढ़ा पाएगा. और जब आप कोचिंग जाओगे, एडवांस कॉन्सेप्ट्स आप तभी समझ पाओगे, है ना, अपने कोचिंग टीचर से, जब आपके बेसिक्स स्ट्रॉन्ग होंगे और वो स्कूल में ही आपके स्ट्रॉन्ग होंगे. योर स्कूल टीचर्स विल स्ट्रेंथन योर बेसिक्स एंड देन यू विल आल्सो हैव टू फॉलो ऑल ऑफ दिस, and then जब आप कोचिंग जाओगे, if you can afford it, हो जाएगा. But guys remember this self study. Guys सबसे ज़्यादा टाइम आपको इसमें बिताना है. Now let me tell you one thing guys, that I will tell you everything. मैं वैसे ही आपको बता. देखो guys, ये देखो guys, like let me just say one thing, that if you want to crack IIT guys, तो 50% of your hard work, 50% of your hard work, okay, comes from this self-study. Okay, 50% of your hard work comes from self-study. Okay, the rest comes from your class teachers, your coaching teachers, and your books. Okay, and the amount of dedication you have. But the last thing that I want to say, guys, is don't forget. गाइज NCERT तो आपको पढ़नी पड़ेगी. गाइज NCERT से अच्छे बेसिक्स आपको कोई बुक नहीं दे पाएगा. आप NCERT पढ़िए, उसके बाद NCERT एग्जाम. ना गाइज NCERT एग्जाम्पलर में एक क्वेश्चन को पढ़िए, क्योंकि गाइज एक क्वेश्चन में वो कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो आपको बताते हैं.
And then guys, those very concepts come in your IIT JEE exam. Okay, and one more thing, guys, when I say do as many previous year question papers, मेरा कहने का ये मतलब है guys, आप जितने ज़्यादा question papers करोगे, आपको पता चलेगा. जैसे आजकल क्या हो गया, आजकल जो है NTA कंडक्ट करता है, जो नहीं सॉरी, NTA तो GMains कंडक्ट करता है. Okay, sorry guys, I think I got confused with GMains. G Advanced is conducted by the IIT Senate. Sorry, मैं मतलब कंफ्यूज हो गया, शायद कुछ और कहना था, बट अच्छा हुआ याद आ गया. तो मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप जी मेंस की तैयारी कर रहे हो, यस, अगर आप जी मेंस की तैयारी कर रहे हो, सो गाइस जी मेंस इज कंडक्टेड नाउ बाय एनटीए. सो फॉर जी मेंस व्हाट यू हैव टू डू गाइस, कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स करिए. क्वेश्चन पेपर्स बिटवीन 2002 टू 2010 आप कीजिए. फिर उसके बाद from 2013 to around 2021 जितने क्वेश्चन पेपर्स हैं वो सारे आप सॉल्व कर लेना, आपको जी मेंस का पता चल जाएगा. तो वो तो गाइस जी मेंस का है. मैं जी एडवांस से I was getting confused, but मैंने सब कुछ बता दिया. So guys, I already told you 50% जो आपका है सेल्फ स्टडी में जाता है, बाकी 50% आपका कोचिंग, आपकी सेल्फ स्टडी, आपके टीचर्स स्कूल के और कोचिंग के और बुक्स में चला जाता है. सो इफ यू वांट टू क्रैक IIT JEE, दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप्स. और गाइस, ये टिप्स आपको कोई इस तरह का भी बताएगा नहीं. मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ गाइस, क्योंकि मुझे जब रियलाइज हुआ कि क्यों लोग बोलते हैं कि NCERT से करो, है ना, देन आई थॉट व्हाई डोंट आई शेयर विद यू. पहले भी लोग मेरे को कहते थे कि तुम बच्चों को पढ़ाते हो तो NCERT से पढ़ाओ. तो मैंने कहा है NCERT से, मैं अपने मन में कहता है NCERT से. मैंने कहा NCERT की बुक्स में तो ज़्यादा एग्जाम्पल्स भी नहीं है, एग्जाम्पल्स ईजी हैं, क्वेश्चंस बड़े मुश्किल हैं. मैंने कहा ये क्या बात कर रहे हैं. मैंने कहा बच्चे करते कैसे. फिर उसके बाद जब मैंने एग्जाम्पलर देखी, क्योंकि मैं एग्जाम्पलर से भी पढ़ाता था, फिर मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ मैंने थोड़ा मिलाया, तब मेरे को रियलाइज हुआ. ओके, सो गाइस, डोंट अंडरएस्टिमेट the level of questions and the concepts in exemplar. Okay, so I have told you everything. So I wish you all the best for IIT JEE 2022, 2023 and beyond. And also for those students who are going to do G mains, I would recommend that you also do all of these. And guys, obviously do as many previous year G mains question papers as you can. And remember guys कि G mains में क्या है, NTA ने टेक ओवर कर लिया है, तो G mains में आपको NTA के भी प्रीवियस ईयर्स के करने चाहिए. और उससे पहले जब CBSE कंडक्ट करता था G mains को, उनके भी थोड़े बहुत क्वेश्चन पेपर्स आप कर लीजिए, उससे आपकी रैंक जो है अच्छी आ जाएगी. Anyways guys, I've told you as much as I could, and I wish you all the best of luck, and all the best, good luck for your future. So now I'll take leave. So see you next time. Thank you for watching.